Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss the solved question paper of UPSC Principal Exam 2012. It is for Delhi Board schools, and it is the previous year paper, so that you can get reference that what is the pattern and what type of questions coming, because in advertisement actually syllabus is not given. So from the previous examination paper, easily we can detect the pattern. So according to this, we can prepare ourselves. So in this question part, I will discuss the administrative part and official management part. So it is very important one. You can get some ideas, you can get reference, and according to this, you can engross your preparation. So my friends, if you have not subscribed my channel Asit Government Rule Guru, please subscribe my channel, so that in subsequent time you can get a notification for my upcoming videos. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss UPSC Principal Exam 2012 questions related to the administration and official management. You see, question number 1, it is given: the claims for reimbursement of medical expenses shall normally be not entertained if not preferred within the following period from the date of completion of the treatment. जो क्वेश्चन है, यदि कोई मेडिकल एक्सपेंस के लिए आप मनी स्पेंड किया है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट विद इन हाउ मेनी मंथ्स you can claim for reimbursement. So within specific period of time you must claim for reimbursement, otherwise the claim must be forfeited. So जो रूल है 6 मंथ्स के अंदर, जब मेडिकल ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट कर लेते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर से, तब हम 6 मंथ्स के अंदर रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम करेंगे. Right? So very important one. So answer is bit B. Clear? Question number 2. The principal of an educational institution sends a proposal to the management for office automation to be introduced in the institution. He gives the following reasons. So अभी ऑफिशियल ऑटोमेशन चल रहा है, सो उसका देखेंगे हम क्या एडवांटेजेस है ऑफिशियल ऑटोमेशन में. हम जानते हैं कि फास्टर प्रोसेसिंग होता है, कि फास्टर डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कि रिलेटेड टू हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. सो कुछ ऑप्शंस दिया गया है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे. ऑफिशियल ऑटोमेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस में. देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शंस है, इट विल फैसिलिटेट फास्टर प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. इट विल लीड टू हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी करेक्ट है. It will help the faculty to be linked with others on social network sites. No, ये गलत है. It helps in accurate analysis of facts and figures. ये भी करेक्ट है. So 1, 2 and 4 करेक्ट है. ऑफिशियल ऑटोमेशन से आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, मगर यहाँ पर जो आंसर होगा 1, 2, 4, ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है. जो स्टेटमेंट 3 है वो सही नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल ऑटोमेशन से हम कोई सोशल नेटवर्क के साथ हम इट मीन्स फैकल्टी मेम्बर्स लिंक करके कोई ऐसा कुछ बातचीत नहीं करेंगे. राइट? तो 1, 2 and 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन. यू सी विच ऑफ द अबव रीजंस आर फंक्शनली जस्टिफाइड. इट इज़ 1, 2 and 4 ओनली. आंसर इज बिट बी. तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. व्हाट इज एन ऑफिशियल ऑटोमेशन सिस्टम? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम जनरली इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन. दिस इज accomplished थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर solutions. The primary goal is to allow data to be shared and manipulated with or without the need for human intervention. So official automation क्या है? बोथ कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का. पूरा डाटा हम रखेंगे, डाटा को एडिफाई कर पाएंगे, डाटा में जो अननेसेसरी डाटा है उसको डिलीट कर पाएंगे, उसको शेयर कर पाएंगे. तो उसमें डायरेक्टली ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है. एवरी डाटा हम हमारा डेस्कटॉप में और हमारा लैपटॉप, ऑफिशियल लैपटॉप में रख सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस देख लीजिए. टारगेटेड डाटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग सॉल्यूशंस, एक्यूरेटली मैनेजिंग डाटा, जो डाटा मैनेजिंग होगा एक्यूरेट होगा. स्ट्रीमलाइंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर पाएंगे.
नेक्स्ट वन, ऑफिस ऑटोमेशन फॉर सेकेंड टू नॉन लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी, बहुत डाटा एक्यूरेट होगा। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, इसमें जो हम कॉस्ट बियर करेंगे वो भी कम होगा। और वर्क मॉडलिंग, सो डिफरेंट वर्क फ्लो मॉडलिंग, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए जो भी डाटा चाहिए वो हमारे पास है। तो और कुछ नया डाटा बनाएंगे, कुछ और नया डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, तो वो डाटा को हम सेव कर चुके हैं, उससे फॉलो करके हम बना सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली आर्किटेक्चर, इससे भी हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के इसको हम एंड्रॉयड फ़ोन में भी काम कर सकते हैं। कहाँ पर? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। तो अभी सभी जगह में ऑफिशियल ऑटोमेशन हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द फंड ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू बी रिटेन्ड बाय द हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर मीटिंग डे टू डे कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड। ये जनरल फाइनेंशियल रूल के ऊपर है। कभी कभी क्या है, जो कंटिंजेंसी एक्सपेंडिचर फंड होता है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होता है, कि फाइनेंशियल ऑफिसर जो इंस्टीट्यूशन का फाइनेंशियल ऑफिसर है उसके पास होता है, आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर डे टू डे कंटिंजेंसी एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलते हैं द इम्प्रेस्ड बोलते हैं। ओके, आंसर इज बीट ए। इसको याद रखना है, जो डे टू डे कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर जिसको प्रिंसिपल ऑथराइज करने के बाद जो इंस्टीट्यूशन का फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनके पास होता है। और इन एनी टाइम सपोज एनी डे टू डे कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड, देन फ्रॉम दिस फंड एक्चुअली इट कैन बी मीटेड। सो आंसर इज बीट ए, द इम्प्रेस्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट issues a confidential order for periodical weeding out of records stating the following reasons। कभी कभी क्या है, बहुत कुछ अननेसेसरी डाटा होता है, तो वो अननेसेसरी डाटा को हम वीड आउट करेंगे। अननेसेसरी डाटा जो है उसको हम जो भी है उसको कंडेम करेंगे, जो भी अननेसेसरी डाटा है उसको वीडिंग आउट करेंगे। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिया गया है। देयर वुड बी नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन इन एनी इंक्वायरी, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट वुड बी एफिशिएंट, सेकेंड वन करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इज केप्ट टू बी मिनिमम, ये भी करेक्ट है। द ऑडिटर्स नीड नॉट बी बर्डन विथ अनड्यूली लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो मुझे लगता है 1 और 4 करेक्ट नहीं है। जो हम मीन्स पीरियडिकली हम जो अननेसेसरी डाटा को वीड आउट कर देते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा जो रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एफिशिएंट होता है और हमारा जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम कम कॉस्ट बियर करेंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है रॉन्ग है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही रॉन्ग है, राइट। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर जो आंसर है सेकेंड एंड थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर जस्टिफाइड, सेकेंड एंड थर्ड, आंसर इज बिट सी। तो यहाँ पर दिया है रीजन्स फॉर वीडिंग आउट ऑफ रिकॉर्ड्स। वीडिंग इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द एक्टिव रिकॉर्ड्स। जो हमारा रिकॉर्ड्स है, जो अननेसेसरी फाइल्स है, उसको पीरियडिकली हमको हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एडवांटेजेस है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कलेक्शन। ओनली हम जो क्वालिटी ऑफ कलेक्शन है उसको रिट्रीव करके रखेंगे, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा स्पेस आएगा एंड टू सेव स्पेस एंड मनी। सो ज़्यादा स्टोरेज स्पेस रहेगा और मनी भी कम खर्च होगा मेंटेनेंस के लिए। टू सेव टाइम, कम टाइम भी होगा, क्योंकि अननेसेसरी डाटा को हम निकाल चुके हैं, ओनली क्वालिटेटिव डाटा है। जो डाटा हमारा डे टू डे के लिए चाहे वो सब डाटा है। टू मेक द लाइब्रेरी मोर अपीलिंग, और लाइब्रेरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स वीडिंग आउट अननेसेसरी डाटा फ्रॉम द लाइब्रेरी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द कलेक्शन, हम फीडबैक भी दे सकते हैं हमारा कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि हमारा जो कलेक्शन है अभी वो क्वालिटेटिव कलेक्शन है, जो हमारा जरूर मैंने अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू it means the necessary of the institution. Okay, the datas are there. जो भी unnecessary डाटा था already these datas are removed. तो इसलिए periodically डाटास को रिमूव करना चाहिए। ओके, unnecessary जो डाटा है, unnecessary डाटा, जो डाटा ज़रूरत नहीं है उसको वीडिंग आउट करना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। The term family for the purpose of the Central Services Medical Attendance Rules 1944 includes dependent parents, फैमिली में है,
सॉन बियॉन्ड 25 ईयर्स ऑफ एज, ये नहीं है, क्योंकि ऑप्शन है जब सॉन को 25 ईयर हो जाएगा और सॉन को नौकरी मिल जाएगा। ओके, सॉन बियॉन्ड 25 ईयर्स ऑफ एज नहीं है, जब तक सॉन को 25 एज है और जब सॉन को नौकरी मिल गया, जो भी ईयरली होगा, ओके, तब वो फैमिली में इंक्लूड नहीं होगा। बेसिकली सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में के लिए डिपेंडेंट विडोड डॉटर वो भी फैमिली में आएगा, मैरिड डॉटर नहीं आएगा। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो यहाँ पर आंसर है वो 1 और 3 है। डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट विडोड डॉटर दोनों फैमिली में इंक्लूड है। ओके, सॉन का बात आता है अप टू एज 25 और सपोज गेटिंग इट मीन्स जॉब, जो भी अर्ली आएगा। ओके, जब उसको 25 एज के अंदर जॉब मिल जाता है तब वो इतने फैमिली में इंक्लूड नहीं होगा। अदरवाइज जॉब नहीं मिला है, वो अनएम्प्लॉयड है, तब अप टू 25, राइट। तो 1 और 3 आंसर करेक्ट है। यहाँ पर देख लीजिए 1 और 3 जो ऑप्शन है बीट सी करेक्ट है। उसको थोड़ा एक्सप्लेन देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेशंस फॉर फैमिली, CSMA रूल्स 1944। फैमिली मीन्स जो सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में जो बेनिफिट मिलता है फैमिली को, इसमें कौन कौन आएंगे देखेंगे। फर्स्ट वन, हस्बैंड और वाइफ इंक्लूडिंग मोर देन वन वाइफ एंड ऑल्सो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ, ये इंक्लूड है। पेरेंट्स एंड स्टेप मदर, स्टेप फादर नहीं है, पेरेंट्स एंड स्टेप मदर, स्टेप फादर इज नॉट एलिजिबल। इन केस ऑफ अडॉप्शन ओनली द अडॉप्टिव पेरेंट, नॉट द रियल पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अडॉप्शन केस में ओनली द अडॉप्टिव पेरेंट को फैमिली में इंक्लूड करना है, रियल पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। इफ द अडॉप्टिव फादर हैज मोर देन वन वाइफ, द फर्स्ट वाइफ को लेना है। यदि जो अडॉप्टिव फादर है हैज मोर देन वन वाइफ, ओनली फर्स्ट वाइफ को लेना है। ए फीमेल एम्प्लॉई हैज ए चॉइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ए फीमेल एम्प्लॉई हैज ए चॉइस टू इंक्लूड आइदर हर पेरेंट्स और हर पेरेंट्स इन लॉज। ऑप्शन एक्सरसाइज कैन बी चेंज्ड ओनली वंस ड्यूरिंग सर्विस। जो कोई भी एक चुनता है, और पेरेंट्स को चुन सकता है और पेरेंट्स इन लॉज को, और ये चेंज हो सकता है, वो एक बार चेंज हो सकता है ड्यूरिंग सर्विस। चिल्ड्रन देखेंगे, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन टेकन एज वार्ड्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। जो अनमैरिड सन है टिल ही स्टार्ट्स अर्निंग और अटेन्स द एज ऑफ 25 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ओनली अनमैरिड सन को लेना है। ओके, अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स, अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स और बिफोर 25 इफ ही इज गेटिंग जॉब। ओके, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ को याद रखना है। अनमैरिड सन टिल ही स्टार्ट्स अर्निंग और अटेन्स द एज ऑफ 25 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। डॉटर टिल सी स्टार्ट्स अर्निंग और गेट्स मैरिड विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर एज लिमिट नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट। यदि सन सफरिंग फ्रॉम परमानेंट, ओके, परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ एनी काइंड, सन सफरिंग फ्रॉम परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ एनी काइंड, वो फैमिली में इंक्लूड होता है। फिजिकल और मेंटल, नो एज लिमिट। विडोड डॉटर्स एंड डिपेंडेंट डाइवोर्स्ड और सेपरेट डॉटर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट, ये भी फैमिली में इंक्लूड होते हैं। सिस्टर्स इंक्लूडिंग अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड और सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड और विडोड सिस्टर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट, ये फैमिली में इंक्लूड होगा। माइनर ब्रदर्स इंक्लूड है, माइनर ब्रदर्स ओनली। परमानेंटली डिसेबल्ड डिपेंडेंट ब्रदर, यदि डिपेंडेंट ब्रदर है वो परमानेंटली डिसेबल्ड है, नो एज लिमिट, वो भी फैमिली में इंक्लूड होगा। इसको देख लीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टैंडिंग गार्ड फाइल। तो बेसिकली जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो गार्ड फाइल होता है, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है कि यानी कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो सब गाइड फाइल में रहता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और फ्यूचर में सपोज ज़रूरत है, वो गाइड फाइल में ऑलरेडी वो नोटिफिकेशन है। यदि कोई इंस्टीट्यूशंस में सपोज इन एनी इंस्टीट्यूशन सपोज एनी न्यू पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड, न्यू प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड, so in this case basically notifications related to this must be preserved in the guard file। तो यहाँ पर स्टैंडिंग गार्ड फाइल रिफर्स टू जो ऑप्शन दिया है कवर फाइल टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ए सीक्रेट फाइल, ये गलत है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ फाइल इन केसेस वेयर रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ नथिंग्स आर टू बी रिकॉर्डेड, ये भी गलत है। बीट सी ए फाइल कंटेनिंग समरी ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिलेटेड ऑर्डर्स एंड मॉडल टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये करेक्ट है। बीट सी, ए सेपरेट फाइल ओपन व्हेन द ओरिजिनल फाइल बिकम्स बल्की एंड वॉल्यूमिनस, आंसर है बीट सी। मैं बार बार बताया, जो स्टैंडिंग गार्ड फाइल होता है बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ओके, जो भी ऑर्डर्स है, वो गार्ड फाइल में उसको रखा जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, राइट। तो आंसर है बीट सी, ए फाइल कंटेनिंग समरी ऑफ पॉलिसी डिसीजंस
copies of important policy related orders and model terms of communication. Question number 7. Consider the following statements. A teacher is habitually coming late in the school. What disciplinary action can be taken against him or her by the principal? हम जानते हैं कि टीचर रेगुलरली सपोज कैजुअली आता है वो प्रॉब्लम नहीं है, मगर टीचर रेगुलरली लेट आता है तो रेगुलरली लेट होगा तो एक ऑप्शन है उसको हाफ CL हो जाएगा, ठीक है, जैसे हाफ CL होगा, अदरवाइज वो इट मीन्स हाफ CL होगा तो ऑटोमेटिकली सैलरी डिडक्ट होगा, क्योंकि रेगुलरली वो हैबिचुअली वो लेट आता है। तो ऐसा रूल में है कि रेगुलरली वो लेट में आता है तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगा। बेसिकली CCS कंडक्ट रूल्स 1964 में क्लियरली मेंशन है, यदि हैबिचुअली लेट मीन्स इट इज़ अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके, ही और सी इज़ नॉट डिवोटेड टू वर्क, तो CCS कंडक्ट रूल 1964 के हिसाब से डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अदर केस में वो हैबिचुअली लेट आता है तो उसका हाफ CL होगा, तो जैसे CL नहीं है तो हम HPL होगा, तो वो नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको उसका सैलरी डिडक्ट होगा। तो वहाँ पर दिया है ऑप्शन देख लीजिए, द टीचर कैन बी डिसमिस्ड, ये नहीं है, द पे ऑफ द टीचर कुड बी डिडक्टेड, हाँ पे डिडक्ट होगा क्योंकि हाफ CL हो जाएगा, रेगुलरली लेट आता है तो जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो हाफ CL डालेगा, तो हाफ CL मीन्स वो उस दिन में हाफ सैलरी मिलेगा, ठीक है। ये सो कज नोटिस फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी इशूड टू द टीचर, ये भी करेक्ट है क्योंकि CCS कंडक्ट रूल में क्लियरली मेंशन है कि हैबिचुअली लेट मीन्स बेसिकली इट मीन्स ब्रेकिंग द कंडक्ट रूल एंड सो कज नोटिस मस्ट बी इशूड टू हिम और हर, ओके, एंड डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग वुड बी इनिशिएटेड। तो यहाँ पर जो आंसर है सेकेंड एंड थर्ड है। फोर्थ वन है कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट द टीचर टू हायर अथॉरिटीज, ये नहीं है, तो सेकेंड एंड थर्ड ये करेक्ट वन है जो भी है, तो आंसर भी डी है 2 and 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 8. द प्रिंसिपल ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन issues a writing order stating the various reasons for retaining office records. The order mentioned the following reasons. कभी कभी क्या है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल है वो एक रिटन ऑर्डर में मेंशन करते हैं कि ऑफिस रिकॉर्ड्स को रिटर्न करना है। तो द ऑर्डर मेंशन द फॉलोइंग रीजन्स, क्या रीजन है, ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि इसी रीजन के वजह से हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड को रिटर्न करना है। टू एंश्योर कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही है। टू एंश्योर इम्पार्शियल ट्रीटमेंट टू ऑल, ये सही है। टू अवॉइड रैगिंग, ये गलत है, ये नहीं है। फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एनी लैप्स, ये भी सही है। तो बेसिकली कुछ रीजन बेसिकली इट मस्ट बी मेंशन्ड फॉर व्हाट रीजन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मस्ट बी रिटेन्ड, ओके, एंड द रीजन्स इट इज़ क्लियरली गिवन बाय द प्रिंसिपल। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना है और सबको इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में सब कुछ है, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी ऑर्डर्स क्लियरली है। तो कोई चाहता है कि वो ऑर्डर में क्या लिखा था, वो ऑर्डर का रिफरेंस के हिसाब से वो सपोज आगे में वो कोई भी वर्क को इनिशिएट करना चाहता है, तो बेसिकली ऑर्डर है। तो एंश्योर इम्पार्शियल ट्रीटमेंट टू ऑल, और जो फोर्थ वन, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ वन करेक्ट है। फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी केस ऑफ एनी लैप्स होता है तो हम ऑर्डर देखते हैं कि वो ऑर्डर में क्या रूल है, नहीं कि। तो जो यहाँ पर जो आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। आंसर इज बी डी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9. ए सैंक्शन टू एन एडवांस और ए नॉन रिफंडेबल पार्ट विथड्रॉल फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड अनलेस रेन्यूड लैप्सेस ऑन द एक्सपायरी ऑफ, सपोज सैंक्शन हो गया एडवांस प्रोविडेंट फंड, बेसिकली जनरल प्रोविडेंट फंड में क्लियरली मेंशन है कि अभी कोई एडवांस सैंक्शन हो गया और जो नॉन रिफंडेबल पार्ट विथड्रॉल फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड वो भी सैंक्शन हो गया, मगर सैंक्शन हो गया मगर वो जो कंसर्न एम्प्लॉई है वो अभी तक नहीं लिया, वो सैंक्शन हो चुका है, एडवांस सैंक्शन हो चुका है, और जो नॉन रिफंडेबल पार्ट विथड्रॉल फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड वो सैंक्शन हो चुका है, वो कंसर्न एम्प्लॉय वो अमाउंट को रिसीव नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली वो लैप्स हो जाएगा आफ्टर 3 months, ओके। 3 months रहेगा क्योंकि सैंक्शन हुआ है, 3 months के अंदर एम्प्लॉय को अमाउंट को रिसीव करना है। 3 months के अंदर रिसीव नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली 3 months के बाद वो लैप्स हो जाता है, राइट। आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 10.
an educational institution wishes to introduce office automation for greater functional efficiency and identifies the following areas as amenable for automation। अभी ऑफिशियल ऑटोमेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि द फॉलोइंग एरियाज एज अमेनेबल फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्यों चाहिए ऑफिशियल ऑटोमेशन? स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट है। प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है। डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड डुप्लीकेशन, ये भी करेक्ट है। फास्टर कम्युनिकेशन, ये भी करेक्ट है। चारों करेक्ट है। हम स्टोर करेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे, और हम प्रोसेसिंग करेंगे और टाइमली डिलीवरी करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे और उसका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फास्टर कम्युनिकेशन, हम इट मीन्स विद इन लेस टाइम और एक्सपीडियंटली एंड हास्टेंटली, ऑल्सो इट मीन्स इजीली वी कैन कम्युनिकेट बेसिकली टू द पब्लिक, और वी कैन गिव इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। सो ये चारों करेक्ट है, इसीलिए तो ऑफिशियल ऑटोमेशन होता है। चारों करेक्ट है। विच ऑफ द अबव एरियाज में बी कंसिडर्ड एज अमेनेबल टू ऑटोमेशन? तो चारों करेक्ट है, 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर इज बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 11, लीव ट्रैवल कंसेशन क्लेम इन केस नो एडवांस हैज बीन ड्रॉन स्टैंड्स फॉरफिटेड इफ द क्लेम इज नॉट सबमिटेड विद इन। आपको याद रखना है, आप एलटीसी के लिए, लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए एडवांस लिया है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी विद इन 1 मंथ आपको क्लेम करना है, रीइंबर्स के लिए क्लेम करना है। आप एडवांस लिया है मीन्स आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जर्नी विद इन 1 मंथ यू मस्ट सबमिटेड द बिल। एडवांस नहीं लिया है तो बिल को सबमिट करना है विद इन 3 मंथ्स आपको रीइंबर्समेंट क्लेम करने के लिए। तो याद आया? तो बेसिकली एडवांस लिया है तो विद इन 1 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी विद इन 1 मंथ बिल मस्ट बी सबमिटेड, और एडवांस नहीं लिया है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जर्नी विद इन 3 मंथ्स द बिल मस्ट बी सबमिटेड फॉर रीइंबर्समेंट। तो यहाँ पर एडवांस इन केस ऑफ नो एडवांस तो ये 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जो जर्नी हुआ रिटर्न जर्नी। ओके, रिटर्न जर्नी जब कंप्लीट हो रहा है उसका 3 मंथ्स के अंदर हमको क्लेम करना है। यदि एडवांस नहीं लिया है, एडवांस लिया है तो वो 1 मंथ के अंदर, जब हमारा रिटर्न जर्नी कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ के अंदर हमको बिल को सबमिट करना है। राइट आंसर इज बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन इंक्लूड्स फिजिकल कॉन्टैक्ट एडवांसेस, करेक्ट है। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, करेक्ट है। गोइंग आउट टू सी मूवीज आफ्टर ऑफिस आवर्स, ये गलत है। शोइंग पोर्नोग्राफी, ये भी ठीक है। तो ए, बी एंड डी रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन, ए, बी एंड डी। तो सी गलत है। यहाँ पर वही पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो बीट सी गलत है। राइट आंसर इज बीट सी। तो अभी देखेंगे सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स, इसको रिमेंबर करना है, सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, ये डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, और शोइंग pornography, और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर, ये सब भी आता है सेक्सुअल हरासमेंट में। ओके, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ बेसिकली वोमेन एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस, ये सभी आता है। राइट, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वाइल सीकिंग एडमिशन इन ए स्कूल ए चाइल्ड मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन। जब एक चाइल्ड एडमिशन के लिए जाता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है एप्लीकेशन के साथ? प्रूफ रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, इन केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस स्कूल, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, कॉपी ऑफ पैन कार्ड इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू हिज और हर पेरेंट। फोर्थ वन जरूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ देना है। यदि ट्रांसफर एक स्कूल से और एक स्कूल को होता है तो उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना पड़ता है, मगर फोर्थ वन कोई पैन कार्ड का यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो फोर्थ वन सही नहीं है, फोर्थ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर देखें क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट। एक्चुअली स्टेटमेंट 4 करेक्ट नहीं है क्योंकि हम पैन कार्ड नहीं देंगे। व्हेन द चाइल्ड इज टेकिंग एडमिशन, इज सीकिंग फॉर एडमिशन, देन इन दैट केस एक्चुअली पैन कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल, if the child transfer from one school to another school, then he or she must submit school living certificate, और अदर केसेस रेसिडेंस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सब देना है, मगर पैन कार्ड नहीं देना है। तो आंसर 4 है, गलत है। ओके, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट? फोर्थ वन, जो पैन कार्ड पार्ट, पैन कार्ड नहीं देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और ओमिशंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज मिसकंडक्ट इन्वाइटिंग डिसिप्लिनरी एक्शन? इसमें क्या मिसकंडक्ट नहीं है हम देखेंगे।
हैबिचुअल लेट अटेंडेंस इन ऑफिस, ये मिसकंडक्ट है। नेग्लेक्ट ऑफ वर्क और ड्यूटी, ये मिसकंडक्ट है। पिकिंग ऑफ ए क्वारल विथ नेबर, ये मिसकंडक्ट नहीं है। कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट, ये भी मिसकंडक्ट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि वो बेसिकली फॉर एम्प्लॉय के लिए माने विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन मिसकंडक्ट, बेसिकली बिट सी, पिकिंग ऑफ ए क्वारल विथ नेबर, वो मिसकंडक्ट नहीं है जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अदर केस में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अदर जो हैबिचुअल लेट अटेंडेंस इन ऑफिस, नेग्लेक्ट ऑफ वर्क और ड्यूटी, कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट, ये सब मिसकंडक्ट है और इसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है पिकिंग ऑफ ए क्वारल विथ नेबर, बीट सी इज करेक्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 15, an NGO of national repute engaged in the education of especially able children is desirous of applying for becoming an accredited institution of National Institute of Open Schooling. It is advised that it must meet the following criteria. जो NGO एक्चुअली जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देता है ओपन स्कूल में, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? हम जानते हैं कि NGO जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। उसको गवर्नमेंट से फंड मिलता है, गवर्नमेंट से उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, और वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। और वहाँ पर जो एडमिशन वो लेगा, वहाँ पर वो बेसिकली कैटेगरी बेसिस में नहीं लेगा कि जनरल, OBC, SC, इसके बेसिस में नहीं होगा, राइट। जो जितना जो चिल्ड्रेन एक्चुअली दो टाइप ऑफ चिल्ड्रेन, ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन, दो चिल्ड्रंस आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दो चिल्ड्रंस बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली एंड their parents actually enforce them to involve in some hazardous activities, ये सब चाइल्ड को वो लाके ओपन स्कूलिंग फैसिलिटीज़ देता है। तो अभी देखेंगे क्या क्राइटेरिया है। इट शुड बी अवेलिंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर इट्स एजुकेशनल एंड फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, ये एब्सोल्युटली राइट है। NGO को फंड प्राप्त होता है गवर्नमेंट से ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए और ये सब फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। इट शुड हैव recognition and accreditation with the Rehabilitation Council of India for running training programs and allied services in its area of specialty। हाँ, recognition लेना है, recognition and accreditation लेना है Rehabilitation Council of India, ये भी सही है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड वन, इट शुड हैव रिजर्वेशन इन एडमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC चिल्ड्रन। यदि वो ओपन स्कूलिंग में जो चिल्ड्रंस को फैसिलिटीज़ देता है तो वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, वहाँ पर OBC कैटेगरी नहीं रहेगा, कैटेगरी बेसिस में एडमिशन नहीं होता है। जो भी चिल्ड्रन स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका बेसिकली कोई वर्क एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, ओके, जैसे चाइल्ड लेबर, ओके। और जो ऑर्फन्स है, दोस टाइप ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी दे लॉस्ट देयर फादर एंड मदर एंड चिल्ड्रंस बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, और सम चिल्ड्रंस ऑल्सो इन मॉर्निंग टाइम दे गो टू द आउटसाइड एंड कलेक्ट सम स्क्रैप मटेरियल्स, तो उनके लिए वो बच्चों को लाके वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देता है। तो यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। इट्स एनुअल अकाउंट्स फॉर द प्रेसिडिंग 3 years शुड शो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट नहीं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ओके। उसको फंडिंग मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए और कोई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 3 and 4 गलत है, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट वन। तो यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ एक्रेडिटेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। जो थर्ड फोर्थ है वो गलत है, राइट। तो आंसर इज बीट ए। चलो नेक्स्ट वन, व्हेन ए लीडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन ए लीडर प्लेज ए रैदर पैसिव रोल इन पार्टिसिपेशन एंड लीव कंप्लीट फ्रीडम फॉर ग्रुप एंड इंडिविजुअल डिसीजन, ही इज रिफर्ड टू एज। जो लीडर है वो पैसिव हो जाता है, वो डिसीजन नहीं लेता है, वो माने इट मीन्स the leader has given freedom to the members, only members they can take decision, okay, and decision of the members accepted by the leader and leader role is passive one। so ये जो है ये बीट सी है, लेसेस फेयर और फ्री राइन लीडर, ओके। बेसिकली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल यही सोचता है कि मैं डिसीजन नहीं लूँगा, मेरा जो एम्प्लॉयज़ है, मेरा जो टीचर्स है वो डिसीजन लेंगे, उनका जो भी डिसीजन होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। इट मीन्स ही और सी हैज गिवन फुल फ्रीडम, फुल एमांसिपेशन, ओके, टू द टीचर्स। और जो भी वो टीचर्स डिसीजन लेंगे, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द टीचर्स, देन अल्टीमेटली इट इज एक्सेप्ट बाय द प्रिंसिपल। इट इज लेसेस फेयर और फ्री राइन लीडर। अदर जो है डेमोक्रेटिक लीडर, एक पार्टिसिपेशन होता है,
ओके, बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल्स एंड ऑल द टीचर्स, ओके, it means in all they participate and mutually they take decision. It is democratic. Authoritarian, जैसे educational in authoritarian means only the principal take the decision. Okay, the principal does not allow the teachers to take any type of decision. It is authoritarian. और participative वही है democratic. यहाँ पर जो आंसर है लेस इज फेयर ऑफ फ्री राइन लीडर, क्योंकि लीडर पूरा पैसिव है, पूरा छोड़ देता है कि जो भी मेरा जो एम्प्लॉइज है वो जो डिसीजन लेंगे वही फाइनल होगा। आंसर इज बीट सी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग टेक्निक्स इंक्रीजेस सेंस ऑफ चैलेंज एंड अचीवमेंट बाय गिविंग एम्प्लॉइज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग एंड एवेल्युएटिंग आइडियाज। फिर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात करेंगे जहाँ पर टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है प्लानिंग और एवेल्युएटिंग ड्यूटीज़ के लिए। द प्रिंसिपल हैज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीचर्स फॉर एनी टाइप ऑफ प्लानिंग एंड एवेल्युएटिंग ड्यूटीज़। ओके, द टीचर्स दे हैव टेकन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल्सो दे आर हैविंग राइट टू एवेल्युएट द ड्यूटीज़। ये इसमें क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट होता है। ओके, because the teachers actually they involved in all type of works. The principal has assigned all the works, okay, has distributed all the works among the teachers. Okay, so the teachers they must have experience about the works and they easily they attach with the works. They are having depth and they are getting knowledge about different type of works. तो इस केस में और वो ड्यूटीज़ को भी एवेल्युएट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे। इसमें क्या है, जॉब एनरिचमेंट होता है। तो आंसर इज बिट डी। सो कैंडिडेट्स, जो भी आप जो दिल्ली बोर्ड का प्रिंसिपल जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, जो एग्ज़ाम करता है, यूपीएससी एग्ज़ाम करता है जो दिल्ली बोर्ड का प्रिंसिपल के लिए, देखिए आप क्वेश्चन पैटर्न क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है और ज़्यादातर स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर आता है। तो उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि यूपीएससी प्रिंसिपल मीन्स बेसिकली द प्रिंसिपल्स इन दिल्ली बोर्ड स्कूल्स, राइट। ये क्वेश्चन पैटर्न है, 2012 का ये क्वेश्चन था, तो ये एक रेफरेंस है हमारे लिए। तो इसको देखकर हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्चुअली वी कैन प्रिपेयर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। चलो, क्वेश्चन नंबर 18, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM इज अ टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, डायरेक्शन, मोटिवेशन। आंसर इज बिट बी, इट इज कंट्रोल। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क होता है, तो वो टास्क कितने दिन माने कितना टाइम में खत्म होगा वो फिक्स किया जाता है CPM में। क्रिटिकल पार्ट मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया जाए डिफरेंट टास्क, वो डिफरेंट टास्क का शेड्यूल है कि इसी टाइम के अंदर वो टास्क को खत्म किया जाएगा, तब वो कंप्लीट प्रोजेक्ट एक टाइम के अंदर खत्म होगा। तो बेसिकली क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए। क्रिटिकल पाथ मेथड इज ए रिसोर्स यूटिलाइजेशन एल्गोरिथम फॉर शेड्यूलिंग ए सेट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। द एसेंशियल टेक्निक फॉर यूजिंग CPM इज टू कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। एक प्रोजेक्ट का मॉडल बनाना है, वो क्या क्या टास्क होगा, वो ईच टास्क को कब खत्म किया जाएगा, कितना दिन के अंदर, जो शेड्यूल भी वो रहेगा। तो ये एक मॉडल एक एल्गोरिथम एक प्रिपेयर होगा, तब हमको पता चलेगा कि हम प्रोजेक्ट को कितने दिन के अंदर खत्म करेंगे। तो यहाँ पर दिया है लिस्ट ऑफ ऑल टास्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, द डिपेंडेंसीज बिटवीन द टास्क, द एस्टिमेट ऑफ टाइम दैट ईच एक्टिविटी विल टेक टू कंप्लीट। ओके, ये सब CPM का बात है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई प्रोजेक्ट होता है तो इसके लिए एक एल्गोरिथम बनाया जाता है, इसके लिए एक मॉडल बनाया जाता है, और मॉडल में क्लियरली मेंशन होता है कि ये सब टास्क होगा और ये सब टास्क इतना दिन के अंदर खत्म होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द कंट्रोल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाइंग डेविएशंस, establishing standards, taking correction measures, which one of the following is the proper sequence of the above control process। ये सब कंट्रोल प्रोसेस है। कंट्रोल प्रोसेस में यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, स्टैंडर्ड सेट के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 में फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड सेट करेंगे,
इसके बाद हम डेविएशन को डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद हम करेक्टिव मेजर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 213 होगा, 213 प्रॉपर सीक्वेंस में हम लेंगे। तो आंसर इज बिट बी। आप देख लीजिए कंट्रोल प्रोसेस का स्टेप्स क्या है। फर्स्ट हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड सेट हो गया, ओके, एक कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए, फिर उन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर हम देखेंगे जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हो रहा है, जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस हम जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द रीजन्स फॉर डेविएशंस, क्यों डेविएट हुआ, जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस वो स्टैंडर्ड को अचीव नहीं किया, तो वो रीजन्स हम डिटेक्ट करेंगे, फिर करेक्टिव मेजर्स को जाएंगे, राइट। ये सब 5 स्टेप्स है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, कम्युनिकेशन in an organization should ideally flow from top to bottom only, from top to bottom and from bottom to top, from bottom to top only through departmental correspondence। जो हमारा बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सुपरियर टू सबऑर्डिनेट। बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी कम्युनिकेशन होगा बेसिकली वो प्रिंसिपल टू लोअर लेवल तक जाएगा, प्रिंसिपल टू सबऑर्डिनेट्स को जाएगा। बेसिकली इसका जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, टॉप टू बॉटम। क्लियर, आंसर बीट ए, टॉप टू बॉटम ओनली, सुपरियर टू सबऑर्डिनेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी हुज एनुअल टर्नओवर इज ₹80 crores passes all conveyance vouchers in excess of ₹30। दिस इंडिकेट्स जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर है ₹80 crores, जो भी कन्वेंस वाउचर ₹30 से ज़्यादा है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी उसको पास कर देता है। दिस इंडिकेट्स बीट ए इफेक्टिव एंड पर्सनल कंट्रोल ओवर कन्वेंस एक्सपेंसेस, लैक ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेक्ट नहीं है, इनकलकेशन ऑफ प्रूडेंस अमंग द स्टाफ ये नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव पेंचेंट फॉर पर्सनल सुपरविजन ये नहीं है। तो आंसर इज बीट ए, इफेक्टिव एंड पर्सनल कंट्रोल ओवर कन्वेंस एक्सपेंसेस। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो देखता है कि जो भी कन्वेंस वाउचर है ₹30 से ज़्यादा उसको वो पास कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये उसको पता है कि इट मीन्स जो कन्वेंस एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल में है और वो उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहता है। तो आंसर इज बीट है, इफेक्टिव एंड पर्सनल कंट्रोल ओवर कन्वेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोसीजियर इज ए कंपोनेंट ऑफ, प्रोसीजियर एक्चुअली इज ए कंपोनेंट ऑफ प्लान, क्योंकि प्लान का कुछ कंपोनेंट ऑफ, आंसर इज बीट सी। देखिए प्लान का कंपोनेंट्स आप देख लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। बेसिकली जो प्लान का कंपोनेंट्स है वो मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजियर्स, प्रोग्राम्स, बजट एंड स्ट्रेटेजीज। द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ मेनी एस्पेक्ट। जो प्लान का जो प्रोसेस है, फर्स्ट मिशन होगा। देखिए मिशन में क्या आता है, हमारा फंडामेंटल पर्पज, किस पर्पज के लिए हम ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पज द प्रोजेक्ट, द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी इनिशिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशन, इट इज मिशन। ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और टारगेट, इट इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ प्लान, गोल और टारगेट। ओके, व्हाट टाइप ऑफ गोल टू बी अचीव्ड, व्हाट वुड बी द टारगेट। ओके, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ गया। पॉलिसी जो है कोर्स ऑफ एक्शन, ओके, क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, राइट, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फिर प्रोसीजियर्स आएगा, प्रोसीजियर में स्टेप बाय स्टेप मेथड्स। ओके, प्रोसीजियर्स बेसिकली गाइड एक्शंस फॉर एक्टिविटीज दैट मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज परफॉर्म, ऑल्सो इंक्लूड स्टेप बाय स्टेप मेथड। जो भी मैनेजर्स और एम्प्लॉइज है और वो एक्चुअली उनको गाइड किया, प्रोसीजियर्स में उनको गाइड किया जाता है कि कैसे वो एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है, और स्टेप बाय स्टेप मेथड आ जाता है प्रोसीजर में। बजट जो है मनी की बात आता है, बजट आर प्लान्स दैट एक्सप्रेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स बेसिकली। क्योंकि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब कोई प्रोजेक्ट किया जाता है, सपोज द इंस्टीट्यूशन हैज डिसाइडेड टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट, देन फर्स्ट वन इज द मनी। ओके, हाउ मच मनी शुड बी रिलीज्ड to complete the project, then again it means the project would be fruitful for the institution. So basically budgets are plans that express
expected results in numerical terms. For example, an income budget shows expected financial results and profits. प्रोग्राम में सब कुछ आ जाता है, जो मेथड से, प्रोसीजर से, पॉलिसीज है, सब आता है. जो भी कंपोनेंट्स प्लान का है, बहुत कुछ कंपोनेंट्स प्रोग्राम में आ जाता है. ए प्रोग्राम इज नथिंग बट द आउटलाइन ऑफ ए ब्रॉड ऑब्जेक्टिव. इट कंटेन्स ए सीरीज ऑफ मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इम्प्लीमेंट. इन अदर वर्ड्स, इट इंक्लूड्स मेनी अदर कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग. ये सब प्लानिंग का कंपोनेंट्स है, जैसे मिशन है, राइट, जैसे ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे पॉलिसीज है, जैसे प्रोसीजर्स है, जैसे बजट है, जैसे प्रोग्राम है. ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, राइट, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लान. तो राइट, अभी चलेंगे. ए प्लान एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. अभी हम डिस्कस किए. ए प्लान एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज नोन एज बजट. आंसर इज बिट डी. ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में जब प्लान को हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में, कोई न्यूमेरिकल डाटा में हम देते हैं कि बजट में हम देते हैं कि इतना पैसा खर्च होगा एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. ये प्लान में है कि एक ऐसा एक प्रोजेक्ट होगा जो इंस्टीट्यूशन के लिए बेनिफिशियल होगा और उसके लिए इतना पैसा खर्च होगा. तो इतना पैसा खर्च होगा मीन्स वो आ गया बजट में. तो बेसिकली क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्वांटिटेटिव बेसिकली न्यूमेरिकल फैक्ट. तो आंसर इज बिट डी, बजट. चलो 24, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. गलत है. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एट टॉप लेवल, मुझे लगता है ये करेक्ट है. अवॉइडिंग अथॉरिटी नहीं. इनेबलिंग मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड नहीं. तो आंसर इज बिट बी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एट टॉप लेवल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आंसर इज बिट बी. ग्रेप वाइन इज ए टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू. ग्रेप वाइन जो क्या है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. जैसे कोई मैसेज र्यूमर होता है आई मीन एम्प्लॉइज़ में, और कोई ऐसा कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है एक एम्प्लॉय से और एक एम्प्लॉय को. इस तरीके का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कहा जाता है. जैसे मैं एक उदाहरण दिया, र्यूमर. एक र्यूमर हो जाता है कि ये हो गया इंस्टीट्यूशन में, सब एम्प्लॉइज़ उसके ऊपर बात करते हैं, मगर वो इन्फॉर्मेशन वो ऑथेंटिक हो सकता है, ऑथेंटिक भी नहीं हो सकता है. वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कहा जाता है. इज अ टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू, मैं बता चुका हूँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. आंसर इज बिट बी. तो थोड़ा ग्रेप वाइन के ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इट इज एक्चुअली एन इनफॉर्मल व्हीकल थ्रू विच मैसेजेस फ्लो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. Nowadays, the grapevine effect is the informal transmission of information, gossip or rumor from person to person, right? Because this mode of communication is informal, all information that passes through is open to change and interpretation. चलो, the next चलेंगे. The cash transactions of an educational institution are presented in a summarized form. एक summarized form में cash transactions of an educational institution is presented. This statement is known as रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे तो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं दे. इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस वो बिजनेस के लिए होता है, ओके, फार्म फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के लिए होता है. मगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए हम देखेंगे रिसिप्ट, पेमेंट, बैलेंस शीट. मगर समराइज्ड मीन्स बैलेंस शीट, समराइज्ड मीन्स बैलेंस शीट, राइट. तो आंसर इज बिट सी. 27, question number 27. In case a sports fund is maintained, expenses on account of sports events should be charged to sports fund, charged to income and expenditure account, taken to the balance sheet on the asset side, ignored. बेसिकली हम जानते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्पेसिफिक फंड होता है उसी से, सपोज जैसे यहाँ पर स्पोर्ट्स फंड दिया और कोई अभी स्पोर्ट्स फंड है, अभी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सपोज इनिशिएट होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पर एजुकेशनल इट मीन्स मीट के लिए जो खर्च होगा वो कहाँ से आएगा? वही स्पोर्ट्स फंड से आएगा. स्पेसिफिक फंड है, वही स्पेसिफिक फंड से आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन केस स्पोर्ट्स फंड इज मेंटेन, एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट शुड बी चार्ज टू स्पोर्ट्स फंड. आंसर इज बीट ए. ठीक है. नेक्स्ट वन 28. When payment is made to a person by cross check, the implication of crossing implies that crossed check दिया जाता है. आप देखा होगा कि अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर of the upper part of the check, two cross lines it means drawn. Yes, the है. तो basically the payment to the person is cancelled. ये गलत है. The payment will be made only to the account of the person.
द पेमेंट विल बी मेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ द पर्सन। चेक में जिसका नाम है, जो पेई का नाम क्लियरली मेंशन है चेक में, और वहाँ पर क्रॉस चेक है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो पेई का नाम है उसी का अकाउंट में डायरेक्टली वो जमा होगा। द पेमेंट विल बी मेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ द पर्सन। बिट सी एनी पर्सन टेक द पेमेंट, नो द चेक इज नॉट वैलिड। आंसर इज बिट बी। ओके, जो पर्सन का नाम लिखा है क्रॉस चेक में उसी का अकाउंट में जमा होगा। आंसर इज बिट बी। एक ओवरड्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन है। स्कूल हैज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹50,000 इन इट्स बैंक अकाउंट। दिस ओवरड्राफ्ट क्या है? जैसे स्कूल अकाउंट है, स्कूल अकाउंट में अभी 2 लाख है। ओके, स्कूल अकाउंट एक बैंक में है। सपोज मेरा एग्जांपल सुनिए, स्कूल अकाउंट अभी सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट मीन्स नियर बाय द स्कूल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें स्कूल अकाउंट है और अभी स्कूल अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ है, मगर अभी 3 लाख चाहिए स्कूल को। ठीक है, मगर अकाउंट में कितना है? 2 लाख है, तो उसको 3 लाख चाहिए, तब बैंक 3 लाख दे देगा, मगर कितना एक्स्ट्रा दिया अमाउंट? 1 लाख एक्स्ट्रा दिया, वही ओवरड्राफ्ट है। जो एक्स्ट्रा 1 लाख दिया वो एक लोन की तरह हो गया, और विद इन शॉर्ट कॉल नोटिस बेसिकली द इंस्टीट्यूशन विल रिटर्न बैक इट विथ इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का 2 लाख था, उसको 3 लाख चाहिए, तो 1 लाख ज़्यादा दिया, तो 1 लाख जो 1 लाख दिया वही ओवरड्राफ्ट है, और ये एक लाइबिलिटी है। इट इज़ एन एसेट फॉर द स्कूल, इज अ लाइबिलिटी फॉर द स्कूल, इज आइदर एन एसेट और लाइबिलिटी फॉर द स्कूल, implies that while writing a draft overwriting is made, it is a liability। ओवरड्राफ्ट जो अमाउंट दिया, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, वो एक लोन की तरह है, वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मीन्स द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ओब्लाइज्ड टू पे बैक इन फ्यूचर। ओके, हियर द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ओब्लाइज्ड टू पे बैक इन फ्यूचर विथ इंटरेस्ट। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बेसिकली ओवरड्राफ्ट केस में एक शॉर्ट कॉल नोटिस, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगेन द इंस्टीट्यूशन रिटर्न बैक द अमाउंट। ओके, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द स्कूल। Answer is bit B. Question number 30. Balance sheet of an organization shows its financial position for a given period as on a particular date, related to assets only, related to liabilities only. ये जो balance sheet of an organization shows its financial position for a given period. Okay. Answer is bit A. इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन था 2012 में जो यूपीएससी प्रिंसिपल क्वेश्चन था, उसमें मैं ओनली कलेक्ट कर लिया एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को और स्कूल मैनेजमेंट को, और बहुत कुछ पार्ट था, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये सब पार्ट को मैं छोड़ दिया। तो यहाँ पर ओनली 31 क्वेश्चंस में ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे आप एक आइडिया आपको मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। ओके, उसका कोई सिलेबस नहीं था। ओके, जो यूपीएससी उसका एडवर्टाइजमेंट निकाला है, तो उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है क्या सिलेबस है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आ रहा है और ऑफिशियल मैनेजमेंट। तो आप प्रिपेयर कर लीजिए ऑफिशियल मैनेजमेंट। तो जितना ऑफिस का मैटर है उसको अच्छे से, जो चीज़ एक्चुअली सभी में प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट होता है। बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड मैटर में प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बेसिकली जो ऑफिस अकाउंट में सभी में प्रिंसिपल का साइन होता है, तो ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर पूरा आपको आइडिया होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, राइट। और जो जितना रजिस्टर्स होता है वो कैसे मेंटेन होता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, राइट। और जो भी कुछ कंडेमनेशन होता है, क्या कंज्यूमेबल है, क्या नॉन कंज्यूमेबल है, ये सब के ऊपर आइडिया होना चाहिए। और प्रिंसिपल तो अथॉरिटी है ना, तो इसके लिए ऑफिस मैनेजमेंट के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो भी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इज, स्कूल हैज परचेज्ड ए मोटर वैन फॉर ₹10 लाख ऑन 1 April 2010. There is a requirement to calculate depreciation at the rate 10% per annum on written down value basis. The value of the van on 31st March 2012 will be. तो इसका कैलकुलेशन, ये आंसर इज बिट सी। अब कैलकुलेशन फार्मूला है, इट इज़ P होल इंटू 1 माइनस R/100 होल स्क्वायर। ये P जो है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वैन, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 10 लाख है। 1 माइनस R% डिप्रिसिएशन क्या है, R है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 10% है। एवरी ईयर वो वैन कितना डिप्रिसिएट होता है, 10%। तो 10 लाख 1 माइनस R% डिप्रिसिएशन परसेंट होल स्क्वायर, इससे निकल के 8,10,000 होता है। तो माय फ्रेंड्स, आपको थोड़ा आइडिया मिल गया।
तो आप प्रिपेयर कीजिए अच्छे से और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु सो दैट इट मीन्स इन सब्सिक्वेंट टाइम यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। आज इतना ही है। थैंक यू, नमस्कार।